नमस्कार मित्रों, दैनिक मानस .com की तरफ से आपका स्वागत है। मित्रों, 2019 में राज्यसभा में तीखी बहस की वजह रहा पेगासस स्पाईवेयर एक बार फिर से सुर्खियों में है। न्यूज पोर्टल द वायर ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत सरकार ने 2017 से 2019 के दौरान करीब 300 भारतीयों की जासूसी की है और इन लोगों में पत्रकार, वकील, सामाजिक कार्यकर्ता, विपक्ष के नेता और बिजनेसमैन शामिल है। भारत सरकार ने पेगासस स्पाईवेयर के जरिए इन लोगों के फोन को हैक किया था। इस रिपोर्ट के बाद सरकार ने सफाई देते हुए इन सभी आरोपों को निराधार बताया है। श्री अश्विनी वैष्णव जी, माननीय मंत्री जी। Honorable Speaker Sir, I rise to make a statement on reported use of spyware Pegasus to compromise phone data of some persons. A highly sensational story was published by a web portal yesterday night. Many over-the-top allegations have been made around this story. Honorable Speaker Sir, the press reports have appeared a day before the monsoon session of the Parliament. This cannot be a coincidence, Honorable Speaker Sir. In the past, similar claims were made regarding the use of Pegasus on WhatsApp. Those reports had no factual basis and were categorically denied by all parties, including in the Supreme Court. The press reports of 18 July 2021 also appear to be an attempt to malign the Indian democracy and its well-established institutions. We cannot fault those who haven't read the news story in detail, and I request all honorable members of the House to examine the issues on facts and logic. The basis of this report is that there is a consortium which has got access to a leaked database of 50,000 phone numbers. The allegation is that individuals linked to these phone numbers were being spied upon. However, the report says that the presence of a phone number in the data does not reveal whether a device was infected with Pegasus or subject to an attempted hack. Without subjecting the phone to this technical analysis, it is not possible to conclusively state whether it witnessed an attempted hack or was successfully compromised. Honorable Speaker Sir, the report itself clarifies that presence of a number in the list does not amount to snooping. Honorable Speaker Sir, now let us examine what the NSO, the company which owns the technology, has said. I quote, NSO Group believes that claims that you have provided with are based on misleading interpretation of leaked data from basic information such as HLR lookup services which have no bearing on the list of the customers targets of Pegasus or any other NSO products. Such services are openly available to anyone, anywhere and anytime, and are commonly used by governmental agencies as well as by private companies worldwide. It is beyond dispute that the data has nothing to do with surveillance or with NSO, so there can be no factual basis to suggest that a use of the data somehow equates to surveillance. I highlight, sir, NSO has also said that the list of countries shown using Pegasus is incorrect. And many countries mentioned are not even our clients. It also said that most of its clients are Western countries. It is evident, Honorable Chairman Sir, Speaker Sir, that NSO has also clearly rubbished the claims in the report. Honorable Speaker Sir, let us look at India's established protocols when it comes to surveillance. I am sure my colleagues in the opposition who have been in government for years are very well aware of these protocols. Since they have governed the country, they would also be aware that any form of illegal surveillance is not possible with the checks and balances in our laws and robust institutions. In India, there is a well-established procedure through which lawful interception of electronic communication is carried out for the purpose of national security, particularly on the occurrence of any public emergency or in the interest of public safety by agencies at the center in the state. These requests are the request for these lawful interception of electronic communication are made
as per the relevant rules under the provisions of Section 5(2) of the Indian Telegraph Act 1885 and Section 69 of the Information Technology Act 2000. Each case of interception, Honorable Speaker Sir, is approved by the competent authority. These powers are also available to the competent authority in the state governments as per the IT procedure and safeguards for interception, monitoring and decryption of information rules 2009. There is a very well established oversight mechanism in the form of a review committee headed by the Union Cabinet Secretary. In case of a state government, such cases are reviewed by a committee headed by the Chief Secretary concerned. The law also provides an adjudication process for those people who are adversely affected by any such incident. The procedure therefore ensures that any interception or monitoring of any information is done as per due process of law. The framework and institutions have withstood the test of time, Honorable Speaker Sir. In conclusion, I humbly submit that the publisher of the report states that it cannot say if the numbers in the published list were under surveillance. Second, the company whose technology was allegedly used has denied these claims outrightly, and the time-tested procedures of our country are well established to ensure that unauthorized surveillance cannot occur. Honorable Speaker Sir, when we look at this issue through the prism of logic, it clearly emerges that there is no substance whatsoever behind this sensationalism. Thank you, Honorable Speaker Sir. पेगासस इससे पहले भी कई बार सुर्खियों में रहा है। 2019 में व्हाट्सएप ने पेगासस को बनाने वाली कंपनी पर मुकदमा भी किया था। तो आइए मित्रों समझते हैं इस वीडियो में कि पेगासस क्या है, इसके सुर्खियों में आने की ताजा वजह क्या है, ये स्पाईवेयर कैसे काम करता है और इससे पहले पेगासस को लेकर क्या विवाद हुए थे। मित्रों सब्सक्राइब करें दैनिक मानस को और दबाएं इस घंटे को, जिससे आपको हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलती रहें। मित्रों आइए सबसे पहले समझते हैं कि फिलहाल ये पेगासस मामला क्यों सुर्खियों में आया हुआ है। मित्रों बता दें कि पेरिस की एक संस्था फॉरबिडन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल के पास करीब 50,000 फोन नंबर्स की एक लिस्ट है। इन संस्थानों का दावा है कि ये वो नंबर हैं जिन्हें पेगासस स्पाईवेयर के जरिए हैक किया गया है। इन दोनों संस्थानों ने इस लिस्ट को दुनिया भर के 16 मीडिया संस्थानों के साथ शेयर किया है। हफ्तों के इन्वेस्टिगेशन के बाद खुलासा हुआ है कि अलग अलग देशों की सरकारें पत्रकारों, विपक्षी नेताओं, बिजनेसमैन, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों और वैज्ञानिकों समेत कई लोगों की जासूसी कर रही हैं। इस सूची में भारत का भी नाम शामिल है। न्यूज पोर्टल द वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक जिन लोगों की जासूसी की गई है उनमें 300 भारतीय लोगों के नाम शामिल हैं। जासूसी के लिए इजरायली कंपनी द्वारा बनाए गए स्पाईवेयर पेगासस का इस्तेमाल किया गया है। मित्रों अब आइए समझते हैं कि पेगासस क्या है। मित्रों बता दें कि पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर यानी जासूसी या निगरानी के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। इसके जरिए किसी फोन को हैक किया जा सकता है। हैक करने के बाद उस फोन का कैमरा, माइक, मैसेजेस, कॉल समेत तमाम जानकारी हैकर के पास चली जाती है। इस स्पाईवेयर को इजरायली कंपनी NSO ग्रुप ने बनाया है। मित्रों अब आइए जानते हैं कि इन 50,000 मोबाइल नंबरों की लिस्ट में से भारत के किन किन लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। तो बता दें मित्रों कि इस लिस्ट में 40 पत्रकार, 3 विपक्ष के बड़े नेता, 1 संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति, मोदी सरकार के 2 मंत्री और सुरक्षा एजेंसियों के मौजूदा और पूर्व हेड समेत कई बिजनेसमैन शामिल हैं। पत्रकारों की बात करें तो ये पत्रकार हिंदुस्तान टाइम्स, इंडियन एक्सप्रेस, TV18, द हिंदू, द ट्रिब्यून, द वायर जैसे संस्थानों से जुड़े हुए हैं। इस लिस्ट में कई स्वतंत्र पत्रकारों के नाम भी शामिल हैं। मित्रों बता दें कि पेगासस सबसे पहले 2016 में सुर्खियों में आया था। UAE के मानवाधिकार कार्यकर्ता अहमद मंसूर को अनजान नंबर से कई SMS मिले थे जिसमें कई लिंक भेजे गए थे। अहमद मंसूर को जब इन मैसेजेस को लेकर संदेह हुआ तो उन्होंने साइबर एक्सपर्ट से इन मैसेजों की जांच करवाई। जांच में खुलासा हुआ कि अहमद मंसूर अगर मैसेज में भेजे गए लिंक पर क्लिक करते तो उनके फोन में पेगासस डाउनलोड हो जाता। मित्रों बता दें कि 2 अक्टूबर 2018 को सऊदी अरब के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या हो गई थी। इस हत्याकांड की जांच में भी पेगासस का नाम सामने आया था। जांच एजेंसियों ने शक जताया था कि जमाल खशोगी की हत्या से पहले उनकी जासूसी की गई थी। वहीं मित्रों 2019 में भी पेगासस सुर्खियों में रहा था।
तब व्हाट्सएप ने कहा था कि पेगासस के जरिए करीब 1400 पत्रकारों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के व्हाट्सएप की जानकारी उनके फोन से हैक की गई थी। इस मामले को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में उस समय जोर शोर से उठाया भी था और सरकार पर कई आरोप भी लगाए थे। मित्रों, बता दें कि इसके अलावा मैक्सिको सरकार पर भी इस स्पाईवेयर को गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करने के आरोप लगे हैं। मित्रों, अब आइए जानते हैं कि इस पूरे मामले में भारत सरकार का क्या कहना है। तो मित्रों, बता दें कि इस पूरे मामले पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय ने सफाई दी है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत एक मजबूत लोकतंत्र है और अपने नागरिकों की निजता के अधिकार के लिए पूरी तरह समर्पित है। सरकार पर जो जासूसी के आरोप लग रहे हैं वो बेबुनियाद हैं। वहीं मित्रों, पेगासस को बनाने वाली कंपनी एनएसओ का कहना है कि वो किसी निजी कंपनी को ये सॉफ्टवेयर नहीं बेचती है, बल्कि इसे केवल सरकार और सरकारी एजेंसियों को ही इस्तेमाल के लिए देती है। इसका मतलब ये है कि अगर भारत में इसका इस्तेमाल हुआ है तो कहीं न कहीं सरकार या सरकारी एजेंसियां इसमें शामिल हैं। अब आइए मित्रों समझते हैं कि पेगासस काम कैसे करता है। तो मित्रों, बता दें कि साइबर सिक्योरिटी रिसर्च ग्रुप सिटीजन लैब के मुताबिक किसी डिवाइस में पेगासस को इंस्टॉल करने के लिए हैकर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। एक तरीका यह है कि टारगेट डिवाइस पर मैसेज के जरिए एक एक्सप्लॉइट लिंक भेजी जाती है। जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है, पेगासस अपने आप फोन में इंस्टॉल हो जाता है। 2019 में जब व्हाट्सएप के जरिए डिवाइसेस में पेगासस इंस्टॉल किया गया था, तब हैकर्स ने अलग तरीका अपनाया था। उस समय हैकर्स ने व्हाट्सएप के वीडियो कॉल फीचर में एक बग का फायदा उठाया था। हैकर्स ने फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट के जरिए टारगेट फोन पर वीडियो कॉल किए थे। इसी दौरान एक कोड के जरिए पेगासस को फोन में इंस्टॉल कर दिया गया था। मित्रों, बता दें कि एक बार आपके फोन में इंस्टॉल होने के बाद पेगासस को हैकर कमांड एंड कंट्रोल सर्वर से इंस्ट्रक्शन दे सकता है। आपके पासवर्ड, कॉन्टेक्ट नंबर, लोकेशन, कॉल्स और मैसेजेस को भी रिकॉर्ड करके कंट्रोल सर्वर पर भेजा जा सकता है। पेगासस आपके फोन का कैमरा और माइक भी चालू कर सकता है। आपकी रियल टाइम लोकेशन भी हैकर को बता सकता है। साथ ही आपके ईमेल, एसएमएस, नेटवर्क डिटेल्स, डिवाइस सेटिंग, ब्राउजिंग हिस्ट्री की जानकारी भी हैकर को देता है। यानी एक बार आपके डिवाइस में पेगासस स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया तो आपकी सारी जानकारी हैकर को मिलती रहेगी। मित्रों, बता दें कि इंस्टॉल होने के बाद पेगासस फोन में किसी तरह के फुटप्रिंट नहीं छोड़ता है। यानी आपका फोन हैक होगा तो भी आपको पता नहीं चलेगा। ये कम बैंडविड्थ पर भी काम कर सकता है। साथ ही फोन की बैटरी, मेमोरी और डेटा का भी कम इस्तेमाल करता है, जिससे फोन के हैक होने का किसी को शक नहीं होता है। मित्रों, बता दें कि एंड्रॉयड के मुकाबले ज्यादा सुरक्षित माने जाने वाले आईफोन के iOS को भी पेगासस हैक कर सकता है। फोन लॉक होने पर भी पेगासस अपना काम करता रहता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट के माध्यम से हमें बताना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो न पसंद आई हो तो भी हमें कमेंट के माध्यम से बताना न भूलें कि आपको इसमें क्या पसंद नहीं आया। और हमारी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भी न भूलें। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आपका धन्यवाद। शुभ दिन।